हमारे साथ क्या होता था कि जब हम नए नए थे, मैं फिल्म बॉबी की बात कर रहा हूँ, तो हम गलतियाँ करते थे, हमको आते ही कुछ नहीं था, हमें बताया जाता था। तो जब रीटेक पे रीटेक होते थे तो डायरेक्टर हु वाज माय फादर, देन ही इज़ नो फादर, ही इज़ अ डायरेक्टर ऑन द सेट्स, नो डैडी पापा बाबूजी मामा एनीथिंग, नथिंग, इट्स जस्ट साहब एंड व्हाट द शॉट इज. So he had a code word. His code word was, he used to ask his chief assistant director how was the shot, and if he wanted a retake, even after that, then he would ask the sound guy. In those days, we used to have sync sound. He used to ask him, his audiographer was Alauddin Khan. So he used to say, Khan Saab, shot kaisa hai? Those were things that, these are code words saying कि मुझे एक और चाहिए तो तुम बोलो एक और चाहिए. Why? I'll tell you why. Because what happens is, invariably, the actor becomes nervous when you start forgetting lines and you do not know and you don't do exactly what your instructions are. So you could become nervous, and I've seen very senior actors going through that phase, because they if you're asking them one after the other, it becomes that sort. So he used to say, oh God, and he used to take a shot and said, that is very good, Rahul, very good. Khan Saab, shot kaisa hai? So that's the code. जी एक और चाहिए, मेरा साउंड ठीक नहीं. अरे यार, this is wrong. Sorry, your shot was damn good, but I want the same thing, same thing again. And then he would pass the instruction. देखो वो जो हाथ जो था ना, तुमने ऐसे कवर किया तो वो मत करो और ऐसा करो. This is why the retake is done. So everybody had his own way to work, so not to make the actor nervous or conscious of the fact that So ऐसे ऐसे सर मैं सर एटलीस्ट यू वर फॉर्चुनेट कि आपको रीटेक मिलता था. हमारे सेट पे तो ऋषिदा बोलते थे अगर रीटेक चाहिए तो उसकी यू हैव टू पे फॉर इट बिकॉज यू हैव टू सेव द फिल्म. सो यूज्ड टू जस्ट टेक वन शॉट. एंड किफ़ायती जो होती थी ना उस ज़माने में, ख़ास तौर से ऋषिदा की फिल्मों में, तो ऋषिदा सुबह हम लोग सेट पे जाएं, ऋषिदा पूछें कि क्या है सीन, बस रेडी हो जाओ, ये छोटा इधर से आना है उधर का. He never used to tell us anything. He said, वहाँ खड़े हो जाओ, डायलॉग बोलो. ऋषिदा वो ड्रेस क्या होगा? यही जो तुम पहनो यही ठीक है. So every time we went for the shooting to Rishida, I said, ऋषिदा वो कपड़ा क्या पहनना है? यही है ठीक है तुम्हारा जो पहन के है. So in order to look good in the film, we started wearing what we were going to come to the studio with, knowing that Rishida is going to say कि हाँ यही पहन के आ जाओ. तो बहुत सी हमारी ऋषिदा की फिल्मों में जो हमारे कपड़े आपने देखे हैं वो हमारे अपने हैं. He is such a delightful actor to work with. He is a pleasure to work with. अच्छा ये इसलिए यहाँ नहीं रखा है कि आप हमारी तारीफ करें और मैं आपकी तारीफ करूं. इनको बता तो दूं मैं what it's like to work with you. And I must tell you a little later that what he does, and I've learned a lot from him. What he does within how I've learned a lot what he does with his craft, which I will share with him. I don't have any craft. No, well, you have a craft of how you do your work. You're a thespian. How you do your work and how you get into your role is what I discovered about you in this film. After 27 years and done 5 films, I got to know it now. So it's my fault. So आप बताइए सर, आप जो कह रहे थे मैं बाद में बताऊंगा ये आपको. We did कभी कभी together और कभी कभी जो थी वो यश जी के साथ मैंने दीवार शुरू कर दी थी फिल्म, और दीवार ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे थी. और दीवार का जो रूपरेखा थी, जो कहानी थी, उसका जो मूड था, जो कैरेक्टर था, वो एकदम विपरीत था कभी कभी के साथ. और ऑलमोस्ट विद इन 2 days ऑफ फिनिशिंग द दीवार शूट, वी वर इन कश्मीर shooting for Kabhi Kabhi, where there was romance and flowers and elegant clothing and Kashmir and everything. बड़ा अजीब सा लगा सा था उस समय. But this was the craft of Yash Chopra. He was able to switch from one to the other, and always. But even in the film like Diwar, one or two moments when यश जी यूज्ड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी, बड़ा सीरियस सीन चल रहा है, जैसे कि परवीन भाभी जी का और मेरा कोई सीन चल रहा है जहाँ मेरा बाप जो था वो चोर था, ये था, और जैसे ही वो सीन ख़त्म होता था, ही वुड जूम टू अ बुके ऑफ फ्लावर्स. इफ़ यू नोटिस इन दीवार, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा वो. तो वो आदत से मजबूर थे. उनको फूल पौधे, मिठास, शायरी, ये सब बहुत पसंद था. But it was a wonderful experience. We spent many days in Srinagar and Kashmir, and
I was working with Chintu ji for the first time. और I would like to, before you proceed, I'd like to tell the audience how I met you and where I met you the first time. जी जी मैं बताऊं? मैं भी जानना चाहूँगा. आप शायद भूल रहे हैं, मेरी दोस्ती बहुत थी इंदिरा आनंद साहब के बेटों के साथ, और इंदिरा आनंद राइटर थे, उनकी बड़ी दोस्ती थी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से, द राइटर, फेमस राइटर. ये उस वक्त आई थिंक ही वॉज ऑडिशनिंग फॉर द फिल्म सात हिंदुस्तानी. तो आई यूज्ड टू कम टू टेनू आनंद एंड बिट्टू आनंद यू हैव. तो मैं वो घर में आता था, बिकॉज मेरे दोस्त थे, मित्र थे, तो हम बैठे रहते थे. और मैंने एक दिन देखा अ यंग मैन, हैंडसम मैन, वेरी लैंकी, चौखट मारे हुए ज़मीन पे बैठे हुए. ये कोई अपना रिटन टेस्ट दे रहे थे अब्बास साहब के सामने. ये कोई रिटन टेस्ट दे रहे थे, आपको याद आएगा, सोचिए. And I don't know what it was happening, and then there was a kind of a written test, and that was the first time I actually saw you. Sir, ये we सही were not है. introduced. Yes, ऐसा हुआ था सर. बिल्कुल सही है सर. क्योंकि अब्बास साहब चाह रहे थे कि बहुत से जो शब्द थे, डायलॉग्स, वो मुझे मालूम नहीं थे. और मैं आज भी बता रहा हूँ सर कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने शब्द जायका सीखा. टेस्ट, जायका, खाने का जायका क्या होता है, वो शब्द उस दिन जिनकी, और जब से इनके मुंह पे जायका लग गया है, he's left everybody bloody behind. That's why he's Amitabh Bachchan. आरके स्टूडियोज याद है जी. जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे बॉबी के लिए, आशा चंद्रा के जी. आरके स्टूडियो में राज जी का जो मेकअप रूम था, वो सबसे बड़ा, बहुत ही ह्यूज रूम एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर होता था. और वहाँ पर चिंटू और जो इनके ट्रेनर थे, आशा चंद्रा, हाँ, वो डिम्पल और शशिकरण जी. yeah. I used to go and peep, and I used to see him training there for the film Bobby. But wonderful memories. Then we worked together in Amar Akbar Anthony. और अभी हमने एक यहाँ पर प्रोमो शूट किया आपके यहाँ आने से पहले. जैसा कि उमेश जी भी कह रहे थे और चिंटू भी कह रहे थे कि ये यही थिएटर है जहाँ पर अमर अकबर एंथनी चली थी 25 हफ्ते. और चिंटू ने बताया कि अमर अकबर एंथनी 25 हफ्ते चली 25 थिएटर में, मुंबई सिटी के एक शहर में 25 थिएटर 25 हफ्ते. क्या ज़माना था वो. आजकल तो 25 शो नहीं चलती है. 25 शो नहीं चलते हैं, 25 दिन नहीं चलते हैं. And not very many have this a journey like us, touch wood. We've been working since 44 years. And भगवान चाहे तो हम अगले 44 साल भी आगे काम करें.